A hearty welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. I'm speaking Stella from the CA Sansar. So today we are going to talk about a very interesting topic, which is a ICAI merger demerger of CE firms, aggregation of LLPs, global networking and guidelines. For that, we have those everyone knows him, a CA Vivek Khurana sir. Thank you so much, sir, for joining us and also giving your valuable time. Before I begin, I have a small request to all of you, those who are watching us, to subscribe our YouTube channel and do not forget to like, share, and comment. Now, sir, I would invite you to share the thoughts on the today topic. Thank you very much, Stella. And thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform. And today we will discuss about the ICI guidelines on the merger, demerger of the CA firms, then aggregations of LLP and global networking. So let me show you through the PPT. Yeah, just a moment. Yes. So I think now it's visible. So ICI merger, demerger of firms, aggregations of LLP, and global networking guidelines. So we can say that a comprehensive guide to understanding the framework for CA firm growth, continue, and strategic expansion. So recently, in last year, means it was applicable for 2025. So I will guide you regarding the gazetted notification and all this. So it's a not one thing, it's a different guidelines regarding. One is merger and demerger guidelines 2024, and then another one is aggregations of LLPs guidelines 2024, and third one is global networking guidelines 2025. So what we will do into parts because it's very lengthy. So I will do into three parts. Today we will discuss about the merger and demerger guidelines. And after that, in second part, we will discuss about the aggregations of the LLP guidelines 2024. And then after that, in our next part, part 3 or part C, regarding the uh, global networking guidelines 2025. So let's go with the merger and demerger guidelines 2024. दिस इज द गेजेटेड नोटिफिकेशन जो आईसीआई ने मेंशन करी थी कब से एप्लीकेबल है. तो दिस ऑल इन द गेजेटेड नोटिफिकेशन. एंड देन why this merger and demerger guidelines are there, why, what's the issue was there, because what ICI means, it's the reality, not ICI observed, it's the reality. Because in India, more than 75% firms have only one or two partners. Mostly people, what's they do, either they are running proprietorship, sole proprietorship, or the small firms, one or two partners are there. And then what's the issue now, day by day issues are into the bank audits, and they branches are going less, banks are going merged. अभी तो गवर्नमेंट हैव प्रपोजल्स कि उसको इनटू थ्री और फोर बैंक्स, अगर थ्री और फोर बैंक्स में हो गए, मर्ज हो गए ऑल द बैंक्स, पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. फिर तो ये गाइडलाइंस भी काम नहीं करेंगी. तो बट स्टिल नाउ, तो व्हाट आईसीआई सेड कि जो 75, मोर देन 75% फर्म्स हैं, दे आर फेसिंग द इशू रिगार्डिंग द बैंक ब्रांच ऑडिट्स, और इवन PSU CAG के audits में you will get the point on the basis of the partner. Then PSU they want if you have more than 3-4 partners, category 1 firms है. And then even sometimes we have the issues कि we got the assignment from outstation, किसी और जगह पे मिलता है, then but we don't have the partner. Like कई बार concurrent audits में आ जाता है कि आपके पास बाहर की ब्रांच दे देती है, then its issues are there. Then these are the issues what ICI observes the members are facing. Another one, like if some firm, sole proprietorship firm is there, and if by chance he retires or he person the members die, then उसमें सिर्फ आपकी गुडविल का इशू है, अदरवाइज तो फर्म होगी नहीं आपके पास. तो दीज आर सम इश्यूज. दैट्स व्हाई दे ब्रिंग द गाइडलाइंस ऑन द मर्जर एंड डीमर्जर 2024. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एक 30 इयर्स की फर्म है, 30 years old firm है, मोस्टली केसेस में यू विल सी 30 years, 40 years, 50 years old फर्म्स है, ओनली वन पार्टनर, पार्टनर मींस प्रोप्राइटरशिप इज देयर. या फिर फर्म है, अगर आपका एक पार्टनर रिटायर्स हो जाते हैं,
तो व्हाट हैपेंस, फर्म बिकम द पार्टनरशिप फर्म, तो उसमें फर्म बिकम द प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। तो बिकॉज एटलीस्ट टू पार्टनर रिक्वायर्ड है, एक पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी फर्म डिसकंटिन्यू हो जाएगी। देन तो आईसीआई सेड कि you chartered accountant don't think कि we are running a CA firm only for the visiting cards. This should be like an professional institutes. So ICI said कि let's do like it's a professional institute, कि जो आपका for your growth, for your seniority, तो they bring this guidelines। तो वो आर कवर्ड इन दिस गाइडलाइंस। कौन कौन कवर है, मतलब कौन कौन मर्जर एंड डी मर्जर जो आपकी गाइडलाइंस है 2024 में, तो उसमें हु कैन डू द मर्जिंग, मतलब कौन मर्ज कर सकते हैं। या फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप रन कर रहा है बट दैट पर्सन मस्ट हैव द एफआरएन नंबर, कि फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। कई बार क्या लोग करते हैं, एफआरएन नहीं लेते, फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते, देन not that person is not eligible। Another one, partnership firm, of course, they have the FRN number, LLPCA firms. They are covered in this guidelines, means they can merge into another firm। एंड देन नोट कवर कौन से हैं, व्हाट आई टोल्ड यू, इंडिविजुअल सीए जिनके पास एफआरएन नहीं है, या फिर नॉन सीए फर्म, उनके ऊपर तो एप्लीकेबल भी नहीं है, फॉरेन फर्म्स उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है, उनके ऊपर एक न्यू जो ग्लोबल नेटवर्किंग है दैट वी विल डिस्कस। एंड देन जो अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दें कि कोई सीए फर्म है, प्रैक्टिसिंग फर्म 25 ईयर्स है, बट कोई सीए है, फर्म नहीं है, ओनली सीए, अगर सीए फर्म है, एफआरएन है, देन इट्स एलिजिबल। बट इफ ए सीए फर्म, कोई अगर आपने 25 ईयर से वो अगर विदाउट एफआरएन मींस सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, एफआरएन नंबर नहीं है, देन इट्स नॉट एप्लीकेबल। ये गाइडलाइंस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो वी कैन से दैट जो एफआरएन नंबर है आपका, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, इट्स योर पासपोर्ट फॉर मर्जिंग बेनिफिट्स। मींस FRN is not only means firm means partnership firm, it can be sole proprietorship firm also। You can apply for firm registration number। जब आप इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो रिगार्डिंग योर फर्म, देन यू कैन आल्सो अप्लाई, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है देन आल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, मींस विच नाम, मींस XYZ एट कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन दे हैव मेंशन चार्टर्ड अकाउंटेंट सोल प्रोप्राइटरशिप। तो वो आप एफआरएन अगर आपके पास है, देन ओनली दीज गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल ऑन यू। देन व्हाट्स द मर्जर। मर्जर क्या है, मींस टू आर मोर, एज पर आईसीआई मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ है आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैं अवेयर क्या, मैं आपको बता ही नहीं रहा, आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट द आईसीआई गाइडलाइंस जो मर्जर एंड डीमर्जर में मेंशन है, कि टू आर मोर आईसीआई जो रजिस्टर्ड सीए फर्म्स है। आई टोल्ड यू कि जिनके पास एफआरएन नंबर है, सीए फर्म मींस आइदर प्रोप्राइटरशिप और द पार्टनरशिप की उनका, या एलएलपी जो उसमें है, वो एलएलपी के तो अलग से एग्रेशंस में है, तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर टू आर मोर सीए फर्म्स कंबाइंड होके या तो एग्जिस्टिंग फर्म बनाती है या फिर न्यू फर्म में कंटिन्यू करती है, एंड ओल्ड फर्म सीज टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसके ऊपर हम पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उनकी जो लीगल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, बट जो प्रोफेशनल लीगेसी कंटिन्यूटी वो सीनियोरिटी के हिसाब से होगी। देन व्हाट हैव दे हैव टू डू, एमडीजी वन फॉर्म है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हाउ यू कैन डू मींस टू आर मोर, अगर कोई टू फॉर्म्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाती है, या फिर किसी एग्जिस्टिंग फर्म में मर्ज होती है, जो सीनियर फर्म्स है, ओल्ड फर्म्स है, उसमें मर्ज होती है, देन इट्स ए मर्जर। या फिर टू फर्म मर्ज होकर एक न्यू फर्म्स बनाती है, देन दिस इज आल्सो ए मर्जर। तो पहले क्या इशू आ रहे थे, हम मर्ज तो कर लेते थे, बट व्हाट अबाउट आवर ओल्ड फर्म्स, कि अगर हम विद इन ए टाइम पीरियड कि हम डीमर्ज करते हैं, तो हमारी जो ओल्ड फर्म है उसकी सीनियोरिटी या कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो दीज ऑल आर कवर्ड इन दिस न्यू गाइडलाइंस। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जो मर्जर, जो टाइप्स ऑफ मर्जर है, वन इज हॉरिजॉन्टल मर्जर, मींस कि आपकी सेम टाइप की फर्म्स हैं, सेम सिटी में है, सेम ऑडिट वर्क है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई फर्म है ए एंड कंपनी, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, बी एंड कंपनी उसमें 2 पार्टनर्स हैं, तो दे बिकम मर्ज फॉर द पर्पस ऑफ बैंक ऑडिट्स के लिए, या मैन पावर शेयरिंग के लिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग करने के लिए, जो पार्टनर्स की जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो दिस इज लाइक ए हॉरिजॉन्टल मर्जर। देन अनदर वन इज वर्टिकल मर्जर, मींस आपका एक सीनियर फर्म में, अनदर वन इज जो यंग फर्म है, लाइक सीनियर फर्म इस्टेब्लिश इन 1990 एंड जो यंग फर्म है इट्स इस्टेब्लिश इन 2018।
तो व्हाट दे हैपन, दे merge itself. तो means young and company merge with the senior and company. तो this is the vertical merger. तो senior firms को क्या मतलब जो एडवांटेज मिलेगी, दैट सीनियर फर्म विल गेट द सक्सेशन कि जो जूनियर्स हो जाएंगे, एंड यंगर फर्म्स जो है दे विल गेट द सीनियोरिटी. दीज आर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स. And then another one is strategic merger. So strategic merger means if some firm they are doing specialization into audit work, another one CA firm is there, they are more specialized into GST work, another firm is into forensic या कोई और है वो insolvency में. तो now what happen, they are saying let's go merge together. तो उसमें क्या होगा, यू कैन से दैट वन स्टॉप प्रोफेशनल सॉल्यूशन हो जाएगा. आप बड़े कॉर्पोरेट असाइनमेंट कर सकते हो, तो दैट यू कैन डू टुगेदर. दिस इज द स्ट्रेटेजिक मर्जर. तो एग्जांपल हम देते हैं जो मोस्टली केसेस में 90% केसेस में ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल वन फर्म ए है जिसका आपका एफआईएन नंबर 01235. एफआईएन नंबर अगेन आई एम सेइंग दैट्स द मस्ट, that was established in 2005. And firm B, it was established in 2016. Now because senior firm कौन सी है, because always seniority is very important. It's not like that A firm will merge into B, तो फिर उसका कोई यूज नहीं है. B firm will merge into A और A firm will continue. तो उसमें क्या होगा, आपका नेम, एफआरएन नंबर, सीनियोरिटी, एम्पैनलमेंट विल कंटिन्यूस. तो दिस इज फॉर द बेस्ट फॉर द बैंक ऑडिट, पीएसयू, सीएजी, आरबीआई एम्पैनलमेंट्स. तो मोस्टली केसेस में लोग ऐसे मर्ज करते हैं. देन अनदर वन, दिस इज न्यू वन और काफी रेयर केसेस में होते हैं कि फर्म ए और फर्म बी दोनों मर्ज कर जाते हैं एंड दे सेड लेट्स कंटिन्यू विद द न्यू फर्म्स. तो उस केस में क्या होगा, आपका न्यू एफआरएन नंबर होगा. जो लास्ट जो मैंने केस बताया उसमें आपका एग्जिस्टिंग एफआरएन नंबर होगा, यहाँ पे न्यू एफआरएन नंबर होगा. कोई सीनियोरिटी नहीं होगी, वहां पे तो आपकी सीनियोरिटी है क्योंकि पहले फर्म जो आपकी सीनियर है, यहाँ पे आपकी जीरो सीनियोरिटी. आपके कोई जो बैंक एम्पेनलमेंट्स या नथिंग, सारा कुछ फ्रेश एम्पेनलमेंट है, रैंकिंग वगैरह न्यू आएगी आपको. तो दिस इज फॉर द इफ बोथ आर द सेम फर्म्स. लाइक वहां पे तो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे जो 2005 और 2016, अगर कोई टू फर्म्स हैं दे एस्टैब्लिश इन 2016 एंड दे सेड लेट्स कंबाइन टुगेदर, एक नई फर्म बना लेते हैं, उनमें कोई ज्यादा आरबीआई एम्पेनलमेंट्स नहीं है या सीएजी के नहीं है, एंड दे वांट्स द ब्रांडिंग, बिग फर्म बना रहे हैं फॉर सीएजी पर्पस या फिर पीएसयू ऑडिट्स के लिए, बैंक ऑडिट्स के लिए, देन दे कैन गो फॉर दिस वर्जन. बट इसमें आपका कोई आपकी सीनियोरिटी नहीं है, दैट्स द थिंग. तो नाउ व्हाट्स द स्टेप बाय स्टेप मर्जर प्रोसेस. उसमें मर्जर प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मर्जर इफ यू आर डूइंग पार्टनरशिप then it means I can say that you have to do very carefully. It's just like your marriage. तो पार्टनरशिप जितनी जल्दी आप बनाते हैं ना, उससे जल्दी डिसॉल्व होती है. तो मर्जर इज द सेम थिंग. जितनी जल्दी आईसीआई में मर्ज हो रहे हैं केसेस, उससे जल्दी ही डीमर्ज भी हो रहे हैं. तो आईसीआई सेड फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर. मैं तो ये कहता हूं कि इफ you are becoming a partner in a partnership firm, your firm is merging into another firm, so first of all you should understand each other. Go with the negative to negative ki what will happen, this what will, let's first understand each and everything. Like what would be the profit sharing, कि अगर हम सीनियर फर्म के साथ मर्ज हो रहे हैं तो उनके साथ सीनियर्स के इश्यूज, दे हैव द मोर प्रॉफिट शेयरिंग, देन कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, डिसीजन मेकिंग पावर, रिटायरमेंट एंड एग्जिट्स. तो एवरीथिंग शुड बी प्रैक्टिकल एग्जांपल. बिकॉज सीनियर पार्टनर, जैसे कोई सीनियर पार्टनर हो गए, तो दे कैन से कि वी कैन go with the less profit sharing, but yes we need the veto power. Young जो partners हैं, they will say कि no, we want the higher amount because we will do the work. तो that everything you have to discuss. उसमें कुछ पॉइंट भी है कि जो पार्टनर एक रेजोल्यूशन बना सकते हैं आपस में कि हमारा मर्जर का एक ये रेजोल्यूशन क्या बनाना है कि ईच फर्म विच आर गोइंग टू मर्ज टुगेदर, तो दे हैव टू मेक एन रेजोल्यूशन. उससे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि बिफोर एनी डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट सिट टुगेदर एंड डिस्कस एवरी पॉइंट इन डिटेल. हो सकता है इसमें वन मीटिंग में ना हो, टू मीटिंग्स, थ्री मीटिंग्स, फोर मीटिंग्स. इट्स नॉट इन ए हरी, यू शुड नॉट बी इन ए हरी कि अभी अभी कर देना, साइन करो. उसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रॉब्लम्स आती है.
बिकॉज सीनियर के साथ आप पार्टनरशिप करोगे तो यू हैव टू गो विद द एवरीथिंग, कि मेरी प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, वेदर हाउ आई कैन डू, मतलब मैंने कैसे उसमें पार्टनर बनना है, मेरे मतलब लाइक आई विल बी द सेम पार्टनर। आई एम नॉट सेइंग कि सीनियर और आप में सेम हो जाएगा, बट इफ यू आर गोइंग टू पार्टनरशिप तो पार्टनर्स आर द सेम। हमेशा ये नहीं इशू आएगा कि आप जूनियर पार्टनर हो या मैं सीनियर पार्टनर हूँ, दीज आर माई क्लाइंट्स। मैं अभी आपको बताऊंगा व्हाट आर द केसेस जहां पे डीमर्ज होते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो बिफोर एनी डॉक्यूमेंट्स, बिफोर एनी मर्जर। देन यू हैव टू गो फॉर द ईच फर्म हैव टू गो फॉर द पार्टनर रेजोल्यूशन। तो पार्टनर रेजोल्यूशन में क्या करना है आपको, मर्जर डिसीजन, आपका किस डेट से मर्ज करना है आपने, कंटिन्यू फर्म कौन सी होगी, कोई एग्जिस्टिंग फर्म्स में मर्ज हो रहे हैं वही कंटिन्यू करोगे या न्यू फर्म बनाओगे, प्रॉफिट शेयरिंग, देन द कैपिटल ट्रांसफर एंड बैक डेटेड। अगर आपका वो मैं 6 मंथ बिफोर या 1 ईयर बिफोर हमने हमने मर्जर किया तो दैट्स नॉट अलाउड बाय द आईसीआई। देन जो मर्जर एग्रीमेंट्स है, मर्जर एग्रीमेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप तो एक तो स्टैम्प पेपर्स पे है, दीज आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, साइन बाय ऑल द पार्टनर्स हैं। बट उसके अंदर कुछ आपको जो मर्जर एग्रीमेंट लिखने हैं, मैं उसका भी आपको बताऊंगा, दैट शुड बी देयर सीनियोरिटी क्लॉज, ईगो क्लॉज। सबसे ज्यादा इश्यू आपको मिलेगा जब मर्ज फॉर्म हो जाती है रिगार्डिंग द ईगो, कि तुम सीनियर हो मैं जूनियर हूँ, ये मेरे क्लाइंट्स है, ये मेरा ऑफिस है, एवरीथिंग व्हाट आई टोल्ड यू, यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग। देन मैनेजिंग पार्टनर रोटेशन, वो क्या है मैं भी अभी बताता हूँ आपको। एंड ऑल्सो दिस क्लोज आल्सो बी देयर, डी मर्जर क्लोज, कि इन केस ऑफ प्रोफेशनल इनकम्पेबिलिटी partner may opt for the demerger as per ICI guidelines without any litigation. So अगर ये क्लोज नहीं करते, अगर आप अपने एग्रीमेंट में नहीं डालते, देन इट्स द डिजास्टर, फिर बिग इश्यूज आएंगे आपके साथ। देन ड्राफ्टिंग ऑफ मर्जर डीड, जो हम मर्जर डीड में बता रहा हूँ आपको, उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना है नेम एंड एफआरएन नंबर ऑफ द फर्म्स जो मर्ज हो रही है, अपॉइंटेड डेट, नेम ऑफ द कंटिन्यू फर्म या कोई एग्जिस्टिंग है या न्यू है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स ऑफ मर्जिंग फर्म, कैपिटल एंड गुडविल ट्रीटमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, डिसोल्यूशन ऑफ मर्जिंग फर्म, देन रिस्ट्रिक्टिव कन्वेंट। Then this deed should be, I told you, on the stamp paper and signed by the all the partners. जो इंपॉर्टेंट मर्ज डीड्स है जो मैं आपको क्लोज बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट इज कंटिन्यू क्लोज, कि अगर कोई फर्म कंटिन्यू हो रही है विद एग्जिस्टिंग, तो वो उसमें आप लिख दोगे कि दिस फर्म विल बी कंटिन्यू एंड दिस विल बी डिसोल्व अपॉन मर्जर, कि एक फर्म उसके अंदर मर्ज होगी, वो लीगली होगी। बट आईसीआई में वो ठीक है, दैट्स वैलिड, वो आपका फ्रीज कर देंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। बट अदरवाइज आप उसमें मर्ज हो रहे हो। देन कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स जो फर्म मर्ज हो रही है शेल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जो न्यू फर्म्स में है। देन रिस्ट्रिक्टेड कन्वेंट जो है आपका पार्टनर ऑप्शन, जो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है हम फर्म में तो मर्ज हो जाते हैं, साइड बाय साइड हम अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देते हैं, बट दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि जो आपके पार्टनर्स हैं वो कहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आइदर इंडिविजुअल या किसी और फॉर्म में पार्टनर नहीं बनेंगे। देन जो सीनियोरिटी प्रोटेक्शन, जो आपका सीनियोरिटी का है, दैट क्लोज आल्सो शुड बी देयर इन द मर्जर डेट, मैं इसको आगे आपको बताता हूँ। देन जो आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं आईसीआई के पास, MDG 1 मैंने आपको बताया, आप एसएसपी पोर्टल पे जाके उसके अंदर आपके ओटीपी बेस्ड है, विद इन 30 days यू पीपल कैन डू इट। उसमें जो मिस्टेक्स हैं, एक तो जब आप करते हो फाइलिंग डिले कर लेते हो, या कुछ आईसीआई के ऑब्जेक्शन है उसको नहीं रिजोल्व करते, या फिर कुछ सीनियोरिटी का इश्यूज है। देन आफ्टर दैट, कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए, आपका लीगल रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, आपकी न्यू फर्म की डीड्स है, एलएलपी एग्रीमेंट्स है, या फिर जो एलएलपी वगैरह आरओसी वगैरह फाइलिंग्स है, तो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। तो नाउ वंस एवरीथिंग इज डन, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए, आपने न्यू पार्टनरशिप डीड बना गई, देन दिस इज द मर्ज ऑफ सीनियोरिटी फर्म। मीन्स कि आपकी ओल्ड फर्म, अभी मैं इसके एग्जांपल्स भी बताता हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कि अगर आप किसी फर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी कंपनी है, इट्स फ्रॉम द 1980,
तो अभी कोई CDN कंपनीज है, इट्स स्टैब्लिश इन 2020, इफ इट्स मर्ज इनटू ए बी कंपनी में, तो उनकी जो सीनियोरिटी लेवल विल बी फ्रॉम द ओल्डेस्ट फर्म की जो डेट्स है 9080 उससे हो जाएगी। दिस द वेरी गोल्डन, जो कहते हैं ना सीनियोरिटी, जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज द हार्ट ऑफ दिस गाइडलाइंस। तो फॉर एग्जांपल, Firm A, it was established in 1995, and Firm B, it was established in 2015. So now फर्म बी मर्ज इनटू फर्म में, ऑब्वियस सी बात है जो सीनियर फर्म है उसी में मर्ज होगी, बिकॉज एज पर जो आरबीआई के जो डायरेक्शंस है या सीएजी के डायरेक्शन है, दे गिव द नंबर अकॉर्डिंग टू द सीनियोरिटी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा नहीं है कि आप नई फर्म में, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगर ए फर्म बी में मर्ज हो रही है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो बी फर्म विल मर्ज इनटू ए, तो उसमें सीनियोरिटी विल बी देयर रिगार्डिंग द बैंक ऑडिट पर्पस, पीएसयू, लार्ज स्टैंडर्ड्स, पीयर रिव्यू। तो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस गाइडलाइंस। देन जो मैं अभी आपको बता रहा, फ्रीजिंग ऑफ फर्म्स नेम। तो जो आपकी फर्म मर्ज हो रही है, तो व्हाट आईसीआई विल डू, आईसीआई विल फ्रीज दैट फर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल टू फर्म्स फ्रीज हो गई, टू फर्म मर्ज हो रही है और न्यू फर्म बता रही है, तो आईसीआई विल फ्रीज बोथ द फर्म्स नेम। या फिर वन फर्म मर्ज इनटू अनदर फर्म, तो आईसीआई विल freeze into one firm name. So nobody can use that firm name. Or in case of demerger, then you people जो demerge है, they people can continue with the old firm, and that period will continue as it is. This is very very important. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा। आईसीआई जो न्यू चेंजेस है, पहले ये नहीं था, अब गाइडलाइंस में इन्होंने जो 2024 वाली है, इन्होंने गैजेट में भी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, तो दैट वी विल डिस्कस। देन जो आपकी मिस्टेक्स हम करते हैं कि क्लोज उसमें डाला होना चाहिए, कि इसके अंदर आपका क्लोज होना चाहिए कि फर्म विल फ्रीज। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग फर्म कंटिन्यू कर दी है, मैंने आपको बताया कि टू फर्म्स आर देयर, फर्म ए, फर्म बी। तो अगर फर्म ए इज ओल्ड फर्म, बी उसमें मर्ज हो रही है, तो जो आपकी ए फर्म्स है उसके जो बैंक्स, पीएसयू, जो अगर कोई सेंट्रल सिक्योरिटी ऑडिटर्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, ब्रांच ऑडिट कंटिन्यू रहेंगे, सीएजी एम्पैनलमेंट कंटिन्यू रहेंगे, एक्सपीरियंस आपका अनब्रोकन नहीं होगा, वो रैंकिंग आपकी सेम रहेगी। बट इन केस आप न्यू फर्म क्रिएट करते हो, मींस ए फर्म है, बी फर्म है, बोथ मर्ज टुगेदर और उसको क्रिएट करते हैं सी फर्म्स में, इन दैट केस दोनों के अगर कोई पहले बैंक ऑडिट्स हैं सब लॉस्ट हो जाएंगे, सीएजी एम्पेलमेंट लॉस्ट हो जाएगा, रैंकिंग रीसेट होगी, एक्सपीरियंस दोबारा से स्टार्ट होगा जब से उन्होंने फर्म बनाई है, तो दैट वुड बी द इम्पैक्ट। देन आईसीआई किस केसेस में रिजेक्ट करता है, जो मर्जर है उस केसेस में, कि अगर आप कहते हो जी नहीं मेरे तो 6 मंथ्स पहले से हमने मर्ज कर लिया था, तो पहले से मर्ज कर दिया था, तो विद इन 30 डेज आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। देन पार्टनर कोई है, वो किसी और फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पे भी पार्टनर है। फिर कोई रियल पार्टनर नहीं है, मतलब आपकी रियल मर्जिंग नहीं है, खाली डमी मर्जर कर रहे हो, कैपिटल प्रॉफिट शेयर नोट क्लियर, अटेम्प्ट टू मिसयूज सीनियोरिटी, देन मर्जिंग फर्म नोट डिसॉल्व। मर्जिंग फर्म तो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, बट वो फर्म डिसॉल्व आपकी फ्रीज हो जाएगी, बट लीगली दैट फर्म विल बी डिसॉल्व। तो इन दीज केसेस मोस्टली आपके रिजेक्शंस आते हैं। तो जो सिनेरियो हम देखते हैं, अगर कोई सिनेरियो है, पहले फॉर एग्जांपल कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, मर्ज हो रही है पार्टनरशिप फर्म में, तो वेदर इट्स अलाउड, yes, allowed only if the sole proprietor have the FRN number. Then sole proprietor will become the partner, वो partnership में बन जाएगा after that, and then firm continues as the partnership firm. Then another case क्या है, scenario 2, पार्टनरशिप प्लस एलएलपी अलाउड है, यस ऑफ कोर्स अलाउड है। एलएलपी कैन कंटिन्यू और पार्टनरशिप जैसे भी है वो कैन कंटिन्यू, वो आपकी जो चॉइस है उसके ऊपर कर सकते हो। देन मर्जर फॉर सक्सेशन प्लानिंग, सीनियर पार्टनर रिटायर ग्रेजुअली, यंगर पार्टनर्स इंडक्टेड आईसीएस स्पोर्ट, वो बिल्कुल है, इसके अंदर कोई इशू नहीं। देन पोस्ट मर्जर कंप्लायंसेस, अगर आप जब मर्ज हो जाती है आपकी फर्म, न्यू फर्म बन जाती है, देन रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अपडेट योर बैंक अकाउंट्स, क्योंकि आप नई है, एग्जिस्टिंग में भी आप लिखोगे नाउ दिस इज द मर्ज फर्म। एंड देन जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी आपको अपडेट करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अपडेट करना है, लेटर हेड, वेबसाइट्स, आपके जो
बैंक्स के एम्पैनलमेंट्स हैं, यूडीआईन्स हैं, एवरीवेयर यू हैव टू अपडेट दैट। देन डीमर्जर, आई टोल्ड यू, जितनी जल्दी मर्जर होता है उससे जल्दी डीमर्जर भी होते हैं। तो डीमर्जर मीन्स क्या है कि सेपरेशन, लाइक डिवोर्स। आई टोल्ड यू कि अभी तो हमने क्या देखा था, मर्जर इज जस्ट लाइक मैरिजेस, कि आप किसी को पार्टनरशिप किसी के साथ इन्वॉल्व करो, इट्स जस्ट लाइक ए मैरिज। और डीमर्जर मीन्स डिवोर्स। बट डिवोर्स वैसे कहां से होता है? कोर्ट से, यहाँ आईसीआई से। आपको नो नीड टू गो टू द कोर्ट, या कोई और सीनियोरिटी वगैरह एग्जिस्ट नहीं होगी। बट यस, आईसीआई सेड यू पीपल कैन डू योर सेल्फ, बट उसमें कुछ क्लोसेज है, दैट विल सी। तो उसमें क्या है, डीमर्ज कब कर सकते हो? तो जो उसका मिनिमम टेन्योर है आपका 1 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर्स, तो 1 to 10 ईयर्स के बीच में आप डीमर्ज कर सकते हो। बट उसके लिए 75% ऑफ द कंटिन्यू पार्टनर्स ऑफ द ओरिजिनल फर्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे इश्यूज आते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द, जो मर्ज हुई है उसके 75% पार्टनर शुड कंटिन्यू जो डीमर्ज हो रही है। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। जैसे दो फॉर्म्स हैं, ए बी, ए बी एंड सी डी, दो फॉर्म मर्ज हो रही है। उसके बाद न्यू, वो अगर मर्ज हो गए डी, उसमें आ जाती है, सी डी में हो जाती है, नई फॉर्म बना लेती है। नाउ ए एंड बी बोथ सेड कि वी वांट टू डीमर्ज विद इन 5 ईयर्स या आफ्टर 6 ईयर। तो ए एंड बी, टू पार्टनर्स, पहले कितने पार्टनर्स थे? टू। नाउ हाउ मच? टू, मतलब एट द टाइम ऑफ मर्जर टू, नाउ इट्स टू। तो 100% आपकी वो कंटिन्यूस पार्टनर्स है। तो दैट आईसीआई चेक अगर 75% से कम है, देन आईसीआई विल डिसअलाउड इट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन जो आपका फॉर्म्स कौन से हैं, वहां पे आपने MDG 1 था, यहाँ पे MDG 2 डीमर्जर नोटिस, फिर MDG 3 कि जो आपकी फर्म का डीफ्रीज, आप यू कैन रिक्वेस्ट टू द आईसीआई कि आप डीफ्रीज कर दीजिए, एंड देन दैट विल कंटिन्यू। जो आपकी पुरानी फर्म थी वो कंटिन्यू रहेगी। सो एग्जांपल देखो, अगर कोई टू फर्म्स मर्ज हुई है 2020 में, and in 2026 they have some differences after 6 within 10 years है, तो ICAI said yes this can be allowed, तो आप डीमर्ज कर सकते हो। तो आपका ओरिजिनल जो नेम है वो अनफ्रीज हो जाएगा, सीनियोरिटी भी आपकी 2020 से कंटिन्यू रहेगी, एंड देन दिस इज द जो आईसीआई का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूल्स है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो फर्म की कंटिन्यूटी है एज इट इज रहेगी। देन सीनियोरिटी आफ्टर डीमर्जर, डीमर्जर के बाद वही आपका जो आपकी ओरिजिनल फर्म है रिस्टोर हो जाएगी। जो पीरियड ऑफ आपका मर्ज का पीरियड था, जैसे अभी 2020-26 है, 6 ईयर टोटली काउंट होगा, कोई लेगेसी में ब्रेक नहीं आएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन थिंग आई हैव मेंशन, इवन आफ्टर डिवोर्स आईसीआई प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड, जो आपका सीनियोरिटी है उसको आईसीआई विल प्रोटेक्ट इट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपकी मिस्टेक्स है, जो हम बेसिकली लोग करते हैं एट द टाइम ऑफ मर्जर एंड एट द टाइम ऑफ डीमर्जर, वो कई बार इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं। डोंट गो फॉर द इमोशनल डिसीजन। दिस इज, यू आर डूइंग प्रोफेशनल, यू आर गोइंग फॉर द मर्जर फॉर द प्रोफेशनल फर्म्स। देन आप क्लोज नहीं डालते कि मेरी पुरानी फर्म फ्रीज हो जाए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डीमर्जर, बिकॉज दैट्स व्हाई आई सेड ना कि इमोशनली आप ऐसे डिसीजन लेते, नहीं यार हम कहाँ से अलग होंगे। अरे नेगेटिव सोचो ना स्टार्टिंग में, कि इन केस कोई इश्यू हो जाते हैं, देन व्हाट टू डू। देन ईगो क्लैशेस, सबसे इंपॉर्टेंट है ईगो क्लैश, सबसे इंपॉर्टेंट। आजकल तो वैसे ही इवन हस्बैंड वाइफ में ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, तो पार्टनर में क्यों नहीं होंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। देन नो एग्जिट क्लोज, आपने वो भी नहीं मेंशन किया एग्जिट क्लोज का। पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, सक्सेशन की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो दीज आर सम मिस्टेक्स व्हाट पीपल डू। तो ये जो आपका मर्जर एंड डीमर्जर का जो एग्जांपल्स है, जो आईसीआई ने गैजेट में भी दिया है आपके, तो उसमें फॉर एग्जांपल जैसे ए एन कंपनी है established in 2002, बी एन कंपनी है 2004, तो मर्ज हो गए इन ए एन कंपनी, मर्ज इन 2024 में, एंड सीनियोरिटी जब से डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 2002 से चलेगी। देन फर्म नेम फ्रीज कर दिया आईसीआई ने, बी एन कंपनी कब से फ्रीज कर दिया? 2024 से। डीमर्जर हुआ आपका 2034 से, 2034 में, विद इन 10 ईयर्स हो गया। तो बी एन की कंपनी जो है आपकी वो कंटिन्यू रहेगी 2004। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप डीमर्ज करते हो विद इन 10 years। और अगर आपने यहाँ पे कोई सी एन कंपनी है, इट वॉज स्टेब्लिश इन 2004 2005, डी एन कंपनी स्टेब्लिश वॉज 2010, देन मर्ज कर दिया आपने न्यू फॉर्म में 2025 में। सी एन कंपनी ने मर्ज किया डी एन कंपनी में 2010 में, और उसमें कब मर्ज हुआ? 2025 में। और डेट ऑफ स्टेब्लिशमेंट आपकी आ गई, और फर्म को कौन सी उन्होंने आईसीआई ने फ्रीज कर दिया सी एन कंपनी, कब से? 2025 से। अब डीमर्ज होगी 2036 आफ्टर 10 years। तो अब आफ्टर 10 years है, तो जो सीएन कंपनी है वो रिवाइवल नहीं होगा, अनफ्रीज नहीं होगा, बिकॉज इट्स आफ्टर 10 years। तो फिर आपको अगर अनफ्रीज करवाना है तो विद इन 10 years करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अनदर एग्जांपल, ईएन कंपनी आपकी 2005 में इस्टेब्लिश थी, एंड एफएन कंपनी इट वाज इस्टेब्लिश इन 2010। अब इन्होंने मिलके वाई एन कंपनी बना ली 2026, मर्ज इन 2026। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ न्यू नेम, वाई एन कंपनी ऑफ द मर्ज फ्रॉम डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, वो आपकी ओबीसी बात है कि अगर नई भी फर्म बनाओगे ना, तो उसका 2005 से आपका जो आपकी ओल्डेस्ट फर्म है, सीनियर फर्म्स है, उससे आपकी इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी। नाउ आईसीआई फ्रीज ईएन कंपनी, एफएन कंपनी, दोनों को फ्रीज कर दिया। डेट ऑफ फ्रीज 2026। नाउ 2028 में दे हैव डीमर्ज, तो आपकी बोथ दी फर्म अनफ्रीज हो जाएंगी, एंड कंटिन्यूस आपकी 2005 से कंटिन्यू करेगी ईएन कंपनी, एफएन कंपनी 2010 से, कि लाइक इट वाज नो मर्जर, वो आपका कंटिन्यू करेंगी। देन अनदर एग्जांपल, जी एन कंपनी आपकी 2007 में स्टैब्लिश थी, एच एन कंपनी 2012 में स्टैब्लिश थी। नाउ आइदर जी एच एन कंपनी, उन्होंने नाम रखा न्यू फर्म का, आर एच जी एन कंपनी, मर्ज इन 2026, मर्जर कर लिया आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रिवाइज नेम, जो भी हो उसका नेम, जीएच कंपनी आर द एच जी एन कंपनी। तो डेट ऑफ स्टैब्लिश कब होगी? जो ओल्डेस्ट है 2007। नाउ जीएन कंपनी और एच एन कंपनी जो भी है वो आपकी फ्रीज हो जाएगी। अगर इन्होंने 2035 में विद इन 9 years की है, तो जो है आपका सेम एप्लीकेबल हो जाएगा जो उस केसेस में। क्लियर? नो। सो उसके मर्जर या डीमर्जर किस पर्पस के लिए होता है? मर्जर आई टोल्ड यू फॉर ग्रोथ, कि हमने ग्रोथ के लिए, कि हम मिलके बड़ी फर्म्स बना रहे हैं, बिकॉज वैसे भी मोदी जी एंड आवर गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी शुड compete विद द बिग फोर्स। तो अभी कोई ऐसी इंडियन कंपनी नहीं है जो एटलीस्ट बिग 5 बिग 6 में आप दे आर सेइंग कि देयर शुड बी। तो दिस न्यू गाइडलाइंस, बिकॉज ऑफ दैट, कि कुछ आप बिग 4 बिग 5 को compete करो, तो आपकी फर्म बिग 10 में कोई आए। देन डीमर्जर, ऑब्वियस सी बात है, सेपरेशन है आपका। फर्म काउंट मर्जर के बाद 1 है, डीमर्जर के बाद 2 और मोर है। ओल्ड एफआरएन मर्जर में पॉसिबल हो सकता है, अगर उसमें कर सकते हो। ओल्ड एफआरएन उसमें नहीं होगा। सीनियोरिटी, ये सारे ये सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। देन व्हाई द मर्जर फेल्ड, कि जो मर्जर फेल होता है, क्या आईसीआई की वजह से होता है, कोई कंप्लायंसेस की वजह से होता है, या गाइडलाइंस की वजह से होता है? नो। मेजर इश्यूज जो आता है आपका, ईगो मैनेजमेंट, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन पुअर्स है, उस वजह से आपके मर्जर फेल्स आते हैं। तो उस केस में हाउ यू कैन सेव द मर्जर? तो मर्जर को कैसे सेव करना है? एक सबसे पहले तो आप एक रोटेशन बना लो, जो आपका मैनेजिंग पार्टनर मींस, जो सबसे ज्यादा सीनियर पार्टनर हो, आप उसको चेयरमैन बना दो। अनदर सीनियर पार्टनर दैट कैन बिकम द मैनेजिंग पार्टनर, एंड उनका रोटेशन पीरियड फिक्स कर दो, विद इन 2 year 3 years this person will be the rotate to the managing director, and this another person will be the managing director. Then client policy, ये नहीं होना चाहिए कि दिस इज माय क्लाइंट, दिस इज योर क्लाइंट्स, ऑल आर द फर्म क्लाइंट्स। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन द बिल्डिंग। देन देयर शुड बी सम फंक्शनल वर्क, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं अभी जीएसटी का काम कर रहा हूँ, वाई भी कर रहा है, जेट, ऑब्वियसली इश्यूज आएंगे। वन पर्सन मस्ट गो फॉर द audits, another person go for partner, go with the GST, third one go with the networking, that's the very important। then जो मेनली इश्यूज आते हैं, नहीं यार ये तो जूनियर है, ये सीनियर है, नो, पार्टनर्स आर पार्टनर्स। देन जो मैंने अभी आपको बताया था रोल मैट्रिक्स,
सीनियर मोस्ट को आप चेयरपर्सन बना दो, जो भी चेयरपर्सन है आपका, जो उसकी ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, या किसी से आपकी मीटिंग्स है, कोई रिप्रेजेंटेशन देना है, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन, देन चेयरपर्सन विल बी देयर। जो मैनेजिंग पार्टनर होगा डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, उसकी भी ईगो इम्पैक्ट पावर शेड हो जाएगी। अनदर पार्टनर कैन बी द टेक्निकल हेड, कि जो आपकी ऑडिट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है। देन जो आपका ग्रोथ या बीडी पार्टनर्स हैं, वो न्यू क्लाइंट्स की बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह करेंगे। देन कंप्लायंस रिस्क पार्टनर, जो आईसीआई की कंप्लायंस है, पीयर रिव्यू वगैरह, दैट विल डू। तो यू शुड गिव द अथॉरिटी। ये नहीं कि वन पार्टनर इज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, नो, एवरी पार्टनर आफ्टर मर्जर, मतलब हमें सबकी ईगो, वो कहते हैं ना, ईगो को कंट्रोल करना है कि यस, यू आर हेड फॉर कंप्लायंसेस, यू आर हेड फॉर टेक्निकल हेड, यू आर एमडी, यू आर चेयरपर्सन। तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। देन डिसीजन मेकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यार तूने अपने आप ऐसे कर लिया, ये क्यों कर लिया। सो रूटीन जो ऑपरेशंस है, लाइक डे टू डे एक्टिविटी, गिव इट टू द मैनेजिंग, जो आपका पार्टनर्स है। क्लाइंट से प्राइसिंग का डील करना है, जो मतलब आपने क्या फीस कोट करी है, क्या आपने उनसे लेनी है। तो जो कंडक्ट कंसर्न पार्टनर है जो डील कर रहा है, दैट कैन डू हायरिंग, जो है कोई न्यू स्टाफ वगैरह हायर करना है। मैनेजिंग पार्टनर या फिर एचआर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई है तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, कोई न्यू ऑफिस है, मर्जर है, तो दैट शुड बी द यूनानिमस डिसीजन। तो यहाँ पे सबसे इश्यू आता है, तुमने ये अकेले कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तुमने हमें बताया नहीं। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट, हैव टू क्लियर इट। तो जो गोल्डन रूल है कि आई टोल्ड यू अर्लियर, ऑल क्लाइंट्स आर द फर्म क्लाइंट्स, partners are the custodians, not the owners. Then my client, your clients, parallel billing, no, वेरी डेंजरस। आप क्लोज भी डाल सकते हो कि जो वंस यू बिकम द पार्टनर इन ए फर्म, मर्ज के बाद यू कांट डू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, या कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते। या फिर कोई आपका जो मटेरियल डिसीजन है अफेक्टिंग द फर्म्स, तो इट शुड बी इन्फॉर्म एंड इंटीमेट टू द ईच एंड एवरी पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स को जो भी इंटीमेट करना है। एंड नो पार्टनर शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रैक्टिस, ये मैं आपको बता चुका, इन एनी नेम आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देन जो मेन चीज लास्ट में मैं आपको कहूंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीनियोरिटी जो है, इट्स ओनली इंस्टीट्यूशनल, लीडरशिप इज फंक्शनल, एंड रिस्पेक्ट शुड बी इक्वल। दिस शुड बी एट द टॉप ऑफ योर पार्टनर चार्टर, कि गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये नहीं कि यू आर ए न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो, all are chartered accountant. We are going to start a new practice, or we are going to merge into new entity. So all partners are equal. You are senior, yes, I am not saying कि हाँ भाई कल आपने पार्टनर किया और भाई क्या हाल है तुम्हारे, नो, रिस्पेक्ट शुड बी देयर, सबकी है, चाहे इट्स ए जूनियर पार्टनर और सीनियर पार्टनर, रिस्पेक्ट शुड बी देयर। बट ये नहीं कि नहीं हमेशा ही उसको बोलो नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जूनियर हो, आई एम सीनियर, वो हमेशा इश्यूज आएंगे। Okay, so this is regarding your merger and demerger guidelines. And जो next है, aggregations of LLPs, कि जो LLP उसके ऊपर न्यू गाइडलाइंस है, अलग से गाइडलाइंस है। बिकॉज आई टोल्ड यू ना, दिस इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अभी मैंने कोशिश करी है कि इसको मैं कम टाइम में समराइज करूं, फिर भी काफी टाइम लग गया। बट इसके लिए हम पार्ट 2 है, वी विल डू इनटू द नेक्स्ट वीडियो, जो एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें पार्ट 2 आएगा आपका, जो एग्रेशंस ऑफ द एलएलपी, जो आपका एलएलपी के एग्रेशंस है वो डिस्कस करेंगे। एंड देन पार्ट 3, जो अभी रिसेंटली आईसीआई ने अप्रूव किया रिगार्डिंग द ग्लोबल नेटवर्किंग, कि बाहर जो आउट ऑफ इंडिया उन फर्म के साथ आप कैसे नेटवर्किंग कर सकते हो, दैट वी विल डिस्कस इन द थर्ड वीडियो। एंड वेरी वेरी सून हम तीनों के तीनों आपको जल्दी ही आपके पास आ जाएंगे। तो यस, गला भी सूख गया मेरा। तो दिस इज रिगार्डिंग द आईसीआई गाइडलाइंस ऑन मर्जर एंड डीमर्जर ऑफ सीए फर्म्स। तो आई होप जो आपके व्यूअर्स हैं, तो दे गोट ऑल द इंफॉर्मेशन। आई हैड ट्राइड माय बेस्ट कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के साथ उनके आंसर दूं। बट इन if any queries are there, you people can mention it, or you can message me, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो। बट ओनली रिक्वेस्ट, जब भी आप मैसेज करो प्लीज ओनली मेंशन योर नेम एंड प्लेस, एटलीस्ट बता दो। लोग कहते हैं ये क्या है जी, वो क्या है,
जैसे एट द टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर, सेंड योर सॉफ्टवेयर, अरे भाई नाम तो बता दो। एटलीस्ट व्हेन यू पीपल आर कॉलिंग टू द कॉल सेंटर, तब भी आप अपना नाम बताते हो ना, कि आई एम कॉलिंग दिस फ्रॉम देयर, ये मेरा नंबर है, मेरा सब तो भी बताते हो ना। तो व्हाट्सएप पे भी एक नाम मेंशन करने में क्या चला जाएगा, कि सी ए दिस एंड दिस से फ्रॉम कॉलिंग फ्रॉम दिस प्लेस, आप प्लीज मेरी ये क्वेरी बता दो। व्हाई वी, चलो एनीवे, तो यस, थैंक यू वेरी मच। तो कुछ और अगर आपका कोई इशू है स्टेला, तो यू कैन डिस्कस। Thank you so much, sir. Very wonderful you explained, and hope those who are watching us they understood very well. Thank you so much, sir, to again giving your valuable time and also joining us. हाँ, तो बी रेडी फॉर द पार्ट बी वेरी सुन। तो हो सकता है विद इन 1 or 2 days वी विल record this, and once again my sincere thanks to team CSNR for giving me this opportunity. Bye bye, take care.